या हुरियत या शहादत दौलत benim. Assalamu alaikum guys, Zahid here. I'm a bit excited because talking about Ertugrul always excites me. The most important thing about the series is that it has shown an Islamic personality emerging as a hero, establishing justice and truth. Assalamu alaikum. I hope everyone is doing great. Ertugrul has taken world by storm. आपकी और मेरी तरह लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस वक्त एर्तुगरुल देख रहे हैं। 2018 में मेरे ख़ास दोस्त ने शेख शहनवाज ने मुझे ये सीरीज़ रिकमेंड की थी। थैंक यू सो मच ब्रदर। कश्मीर में रिसेंटली इस सीरीज़ ने हद से ज़्यादा मकबूलियत हासिल की है। न लोग सिर्फ इस सीरीज़ को पसंद करते हैं बल्कि इसके किरदारों को पसंद किया जाता है। न सिर्फ इसके किरदारों को पसंद किया जाता है बल्कि लोग एक नई ज़ुबान से वाकिफ़ हो रहे हैं। जो हमारी ज़ुबान उर्दू है वो भी टर्किश वर्ड एक है जिसके मतलब फौज के हैं। सो वाई पीपल ऑफ कश्मीर आर मैडली इन लव विद एर्तुगरुल। लेट्स हियर इट फ्रॉम द पीपल ऑफ कश्मीर। I'm Asif Sultan from Kashmir. I'm a teacher professionally. I would like to say salam in a Turkish way. Salamun alaikum. Salamun alaik. Hi friends, my name is Tahir and I am from Srinagar, Kashmir. आई वाला बैम मैं आदिल भट्ट कश्मीर से। सलाम अलैकुम। मेरा नाम जाहिद है। ये मैंने उनकी तरह सलाम की नहीं तो हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, लेकिन मैंने जो देखा है वहाँ पे वो कहते हैं सलाम अलैकुम। मेरा नाम उवैस है, मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। Hey guys, I'm Zad and I'm from Kashmir. Hey guys, this is Adil. I'm from Kishtwar, Jammu and Kashmir. Hi, अस्सलाम वालेकुम। मैं शौकत अहमद हूँ, मैं कश्मीर से हूँ। Hi everyone, it's Shafeen from Marwa, Kashmir. Assalamu alaikum. I am Bilal Malik from Marwa, Kashmir. Hi, I am Ardat. I am from Kashmir. Hi, I am Idrak from Kashmir. We love Ertugrul. Eyvallah kardeşim. Eyvallah kardeşim. नूरगुल मेरा फेवरेट किरदार इस ड्रामे में। बहुत ही सारे अच्छे किरदार हैं इस ड्रामे में, जैसे एर्तुगरुल, नूरगुल, रूशान भाई, बाबर। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे बाबर भाई का मोटा दिमाग। और इनफैक्ट औरतों में अगर कहा जाए तो शहनाज खातून। सीज़न 1 में वो कैसे बदसात औरत थी और सीज़न 2 में वो ऐसे बन के दिखाई कि इंसान कहे कि यार बीवी तो ऐसी होनी चाहिए। जो मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है वो है तुर्गुत अल। उसकी जो ब्रेवरी है माशाल्लाह। Favorite character in Ertugrul Ghazi is Turgut Alp, the warrior, a very skillful warrior in terms of using his axe. Very strong presence throughout the series. I have two favorite characters of the series. The first one is Haima Hatun, a wonderful mother. She has done justice with the character of a mother. And yes, Ertugrul himself playing a wonderful role. The एर्तुगरुल सीरीज में कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो मुझे बहुत ही पसंद है, जिसमें तुर्गुत है, इब्न अरबिया है। My favorite character, guys, is it's a bit different from yours because it's Amir Saadattin Kopek. You know, but guys, the way he talks and the way he reacts to things and all, it's just super funny. You know, I love the way he talks. So, for example, I'll try to mimic him. So when he comes and introduces himself, when he's on the horse, he's like, "My name is Amir Saadattin Kopek. If anybody tries to go against this Dawlat, he will face consequences." And then take, things like that. And also, Aslan, Character Ertugrul है और तुर्गुत बम से। It would be Halima Hatun, which represents the strong feminine character in the series, and as well as the decency, the discipline, and the fearful nature of how the character has been portrayed in the series. And मेरे फेवरेट हैं जैसे तुर्गुत का कैरेक्टर है और इब्नुल अरबी का कैरेक्टर। इब्नुल अरबी मुसलमानों के एक बहुत बड़े सूफी थे, मशाई गुजरे हैं, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों के सिलसिले में से हैं। उज़्ज़ुल जलाल वाल इकराम दिलों में रहम भरने वाले की है सब हम्दो सना। हम गाजी कहलाएं या शहीद, फतेह अल्लाह ही की है। आई वाला बैम। I learned Kardash like brother. I learned
Yazıklar olsun. I keep on using this, because the people around you or your friends, they keep on disappointing you. So you say yazıklar olsun, shame on you and all that. And furthermore, I've learned, hoş geldin is like when you welcome someone. Ya ulum ya itaat, ya hurriyet ya şahadat. Eyvallah. Eyvallah, mashallah, çok şükür, hadi, afetus. The 3 words that I've learned in the series is Ana, which is mother, phenomenal mother to a son relationship, towards the family and towards the tribe. Kardish is brother. The brotherhood within the tribe speaks it for itself. And Alp is a warrior. The last name of every warrior will be an Alp. For example, Turgut will have a Turgut Alp. Bamshi is a funny character, will have Bamshi Alp. Dogan is the smartest one, so he'll be called as Dogan Alp. वो कुछ तुर्किश वर्ड्स भी सीखने को मिले हैं, जैसे भीम, गारदाशम, हैदराल्लाह, अस्कलरम. Personal favorite would be like Kahraman, which represents heroism or hero. So it has become like my day-to-day use word in my diction and whatsoever you call it. कुछ बातें मैंने सीखी हैं जिसमें है वल्लाह, है गर्दिश. And some of the favorite Turkish words like eyvallah, kardeş. Eyvallah be, teşekkür ederim. मेरे एक करीबी दोस्त हैं मीर आबिद साहब, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा और उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी सीरीज़ है, आपको देखनी चाहिए. तो हमने शुरू के सीजन्स नेटफ्लिक्स पे देखे, उसके बाद से हफ्ता दर हफ्ता जब एपिसोड्स आते गए हम देखते गए. देखिए, कहानी जो है हिस्टोरिकल है और सबक आमोज़ है. तो जब आप इसको देखना एक बार शुरू करेंगे, इट इज़ वेरी ग्रिपिंग. आप इसको छोड़ना नहीं चाहेंगे. सीखने को तो बहुत कुछ है इसमें. अब आप देखें तो किस तरह से आप अपने अंदर के जो डर हैं उसको निकालते हैं और किस तरह से आप हर हाल में सिर्फ सच्चाई का साथ. मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए, जब अर्तुगरुल गाजी का भाई उसका अच्छा नहीं करता है तो उससे भी रियायत नहीं होती है. पूरा वो इंसाफ पे खड़ा रहता है और इंसाफ किया जाता है सबके साथ, भले ही आपका खुद का भाई क्यों ना हो. मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसको देखें और इससे सीखें कि इंसान मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी सिर्फ खुदा से मांगे, बाकी किसी से ना मांगे. Huge fan of this series, Derlis Ertuğrul. I have watched all the 5 seasons so far. The most important thing about the series is that it has shown an Islamic personality emerging as a hero, establishing justice and truth. So far, Hollywood and Bollywood have been busy in painting the picture of Muslims as ignorant terrorists and their women as oppressed. But this series has shown the way Muslims are. Muslims have been craving for a true representation of their religion and of themselves. And this series has done a great job. कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं. बहुत सारे लोग जो अल्लामा इकबाल के फ़ैन्स हैं, उन्होंने ये शेर जवाब शिकवा में सुना होगा, पढ़ा होगा. एक्चुअली मैंने भी पढ़ा था 2011 में और मुझे ये कई वर्ड समझ में नहीं आया था. जो काई है वो काई कबीले की बात कर रहे थे और काई कबीले में स्पेशली कुछ लोग जो थे वो काफ़ी हक पर थे, जिनमें से अर्तुगरुल गाजी था, जो खिलाफत उस्मानिया का बुनियाद जिसने रखी थी. उस्मान बेग उनके फादर साहब थे. तो मुझे ये पता चला कि इसमें इस ड्रामे में, सीरियल में मार काट, मोहब्बत, इज्जत, इबादत सब है. What you can seek out this series is a message of peace and love. Islam is always about peace, not about hatred. छोटे बरसा कबीला, जो कबीले कई के लोग थे, उनको अल्लाह की ज़ात पे इतना यकीन था कि अल्लाह ने उनसे एक अजीम तरीन सल्तनत को फिर कायम करवा दिया, जो 623 साल तक चली, खिलाफत उस्मानिया, और 3 बर्रे आज़म पे मुश्तमिल वो खिलाफत रही. जो मुझे सीखने को मिला इसमें हमारा ईमान किस हद तक मजबूत था और हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे कितना यकीन था. ये चीज़ मुझे सीखने को मिली इस सीरीज़ से. हमें ये इसलिए देखना चाहिए कि पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री क्या है, मुस्लिम्स लेकिन थे क्या और अभी मुस्लिम्स हैं क्या. तो मैं चाहता हूँ कि सब आप ये सब देखें, अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखें कि इसमें कोई ख्वाहिश ही नहीं है. So watching Ertuğrul reminds us about our glorious past, our leaders, how they treated women, how they treated non-Muslims, elders, and their fellow brothers and sisters.
So it reminds us about that. It reminds us about our culture, how beautiful our culture has been. And also, it teaches us, if you're on the right path, if you're on the path of Allah subhanahu wa ta'ala, you can achieve anything in this world. Also symbolizes Islam and our religion as a culture and a religion of peace and harmony. It sends a great message of brotherhood, harmony, spreading of love and peace and respect and gender equality and so many great things. सीखने को मिलता है कि अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए। अगर अल्लाह ताला पे भरोसा हो तो कुछ भी कर सकता है इंसान। जैसे कि वो कुछ चारवाए थे, कुछ टेंटों में रहते, उन्होंने एक सल्तनत कायम की, उस्मान ने सल्तनत कायम कर दी। और अगर हम अल्लाह ताला पे भरोसा करेंगे और अल्लाह की खातिर कोई भी काम करेंगे, इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा सीरियल है, हम सबको देखना चाहिए। पत्थर पे कोई तो खोते वैसे इथी पे पत्थर ना, इट डजंट लुक गुड। थोड़ा पक्स हुई पाती के इतके थे ऊपर वास इसके जिसके लिए लड़ने के लिए एक्टर्स कहाँ से आ गया? कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स मतलब जार्गन हो जाएगा थोड़ा सा, हाँ, टेक्निकल टर्म में। आप यहाँ वहाँ